Hello students, welcome back to the class of psychology. Let's continue our chapter number 2, self and personality. This is the part 3, and in this module we study about the type approaches. These are the different approaches for the personality. So major theoretical approaches to personality we are going to study. So basically this is the first approach. In previous module we studied about the major theoretical approaches of personality in a very short टाइप्स मीन टू से कि हम क्या 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 पढ़ने वाले हैं. नाउ वी स्टडी ऑल दोज अप्रोचेस इन डिटेल. Okay, so this is the first type, and this is known as the type approach. So type approach examine certain broad patterns in the observed behavioral characteristics. Each pattern refer to one type in which individuals are placed in terms of the similarity of their characteristics with that pattern. So students, when we want to explain type approach, explain personality in terms of personality types. Okay, so a personality type refers to a class of people who have several traits in common. ठीक है कि ये पर्सनालिटी टाइप्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेम हैं, कॉमन हैं. ओके, so students, since ancient times efforts to categorize people into personality types have been made. बहुत टाइम से, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं ना कि ये कौन सी पर्सनालिटी टाइप है, ये किस टाइप का पर्सन है या किस टाइप का इंडिविजुअल है, मेरी पर्सनालिटी किस टाइप की है. तो these क्वेश्चन का जो आंसर है इट लाइज इन दिस टाइप अप्रोचेस. ओके, सो ये बहुत पहले से फैसिनेटिंग फील्ड है पर्सनालिटी, एज वी ऑल नो. एंड पर्सनालिटी जो है बहुत टाइम से, एंशियंट टाइम से स्टडी की जा रही है. सो हिपोक्रेट्स, ओके, अ ग्रीक फिजिशियन, प्रोवाइड्स द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन बॉडीली फ्लूइड और ह्यूमर. ओके, ह्यूमर मीन टू से कि हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड जो है, कौन सा ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल में है या उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. एंड अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स यही चीज़ जो होती है यही हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है. मीन टू से जो भी हाई होगा, जो भी फ्लूइड हाई होगा, ओके, वो ही बताएगा कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है. सो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स there were 4 types of fluids or humors, each associated with a particular temperament. Temperament means a personality trait. Okay, so an individual's personality depended upon the fact that which humor was predominant in his or her body. So Hippocrates paired body humor with personality temperament, okay, into yellow bile, black bile, blood, phlegm. Okay, so students, we can say these: choleric temperament, melancholic, sanguine and phlegmatic. ओके, सो येलो बाइल जिनके अंदर कोलैरिक टेम्परामेंट जो होता है, द पर्सन कैन बी इरिटेबल, एक्साइटेबल होते हैं. ठीक है, मेलनकॉलिक टेम्परामेंट जो होता है जिसको कि हम ब्लैक फ्लूइड या ब्लैक बाइल कहते हैं, दीज टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ आर सैड एंड ब्रॉडनिंग. सैंग्विन टेम्परामेंट जिनके अंदर की ब्लड की जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो होते हैं चीयरफुल एंड एक्टिव, सैंग्विन टेम्परामेंट. एंड phlegmatic टेम्परामेंट, अपैथेटिक एंड sluggish. Okay, so this is each जो characteristics हैं ये behavioral features हैं according to the Hippocrates, and this is the first जो हम कह सकते हैं classification of personality which is given by the Hippocrates in ancient time. अब ये बहुत टाइम तक चला, but Hippocrates for human system remain popular for centuries although today, but we know that it is students baseless. Okay, ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी ठीक है, ये बहुत टाइम तक चला. Now the next another interesting type of theory personality was put forward by the Charak Samhita. Okay students, so now actually in Indian Charak Samhita we can call it treatise as Ayurveda. Okay, and they also classify personality, and they classifies people into the categories of Vat, Pitta and Kapha on the basis of 3 humoral elements called Tridosha. Okay, so classified people into categories of Vata, Pitta and Kapha on the basis of 3 humoral elements called Tridosha. ये होते हैं त्रिदोष. So each refers to a type of temperament. Tempera means in Hindi we can say the prakriti. Prakriti means the nature. The nature किस type का है, किस nature का है person, उस person की प्रकृति कैसी है. So each refers to a type of temperament. Mean to say Vata, जैसे कि हमने अभी हिपोक्रेट्स का पढ़ा था, वैसे ही अगर बात बहुत अधिक बहुत ज़्यादा है तो उसका टेम्परामेंट किस तरह का होगा. पित्त अगर ज़्यादा है, कफ अगर ज़्यादा है तो उसकी प्रकृति, उसका नेचर इस तरह का होगा. अनदर टाइप इज़
टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द थ्री गुनास. ओके, तो ये इंडियन है, चरक अकॉर्डिंग टू चरक संहिता ऑल्सो it is ayurvedic treatise. Okay, and another is the typology based on the trigunas. Trigunas means sattva, rajas and tamas. Okay students, so sattva, rajas and tamas. So sattva guna means कि पर्सन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दैट इज़ द क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन. ओके, बहुत सात्विक टाइप पर्सनालिटी. नाउ द नेक्स्ट इज रजस. रजस गुना अगर किसी में बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स इंटेंसिव एक्टिविटी, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फेक्शन, एनवी, मटेरियलिज्म. मीन टू से हम लोग कह सकते हैं सत्व एंड तामस का जो कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा सा सत्व होगा, थोड़ा सा तामस होगा, इट इज़ द रजस. ओके, तो रजस गुण होगा तो ये त्रिगुण जो है. ओके, नाउ द लास्ट वन इज तामस. तामस गुण की पर्सनालिटीज़ कैसी होती हैं? वो होती हैं एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस एंड हेल्पलेसनेस. सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं सत्व गुना जो भगवान राम थे जिनकी हम पूजा करते हैं, एंड द तामस गुना इज रावण जो है वो तामस गुण प्रधान ऐसा माना जाता है हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग. सो ऑल द थ्री गुनास. एंड हम लोग जब बात करते हैं अपने आप की तो सम टाइम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पीपल रजस गुनास. ओके, कि थोड़ा सा सत्व है और थोड़ा सा तामस है, द कॉम्बिनेशन मेड नोन एज द रजस. So all the three gunas are present in every person in different degrees. So the dominance of any guna leads to a particular type of behavior. Okay, tamas guna is on the dominance. It means the person is जो उसका पर्सनालिटी होगी वो एंगर, एरोगेंस वाली होगी, और सत्व वाली बहुत काम एंड कूल होगी. ओके, नाउ द अनदर very interesting type theory of personality was put forward by William Sheldon in 1942, a US physician who related physics to temperament. Now he assigned each individual to one of three categories based upon person somatotype और body build. ठीक है, body type को हम लोग क्या बोलते हैं? somatotype. Okay, and this is very famous. Actually शेल्डन का जो है बहुत ही famous है, and उनके according जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसको कि सोमैटोटाइप बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन कैसा है. तो द थ्री सोमैटोटाइप्स वर एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. ओके, नाउ एंडोमॉर्फिक पीपल की जो बॉडी कैसी होगी, वो होगी फैट, सॉफ्ट एंड राउंड. ओके, सो पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा? रिलैक्स्ड एंड सोशेबल. मेसोमॉर्फिक जो होंगे उनकी बॉडी बिल्ड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, मस्कुलेटर, रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड. ओके, एंड उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी? एनर्जेटिक एंड करेजियस अकॉर्डिंग टू देयर बिल्ड टाइप, बॉडी बिल्ड टाइप. एंड द लास्ट वन इज एक्टोमॉर्फिक. ऑक्टोमॉर्फिक जो होंगे उनका जो बॉडी बिल्ड होगी, सोमैटोटाइप कैसा होगा? थिन, लॉन्ग, फ्रेगाइल. ओके, और उनका जो बिहेवियर, जो उनकी पर्सनालिटी हम कह सकते हैं, वो कैसी होगी? ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्टेड ऑल्सो. सो लिमिटेड यूज़ इन प्रेडिक्टिंग बिहेवियर जो है वो शेल्डन ने किया, सिंपल एंड सिमिलर. ठीक है, बहुत ही सिंपल वे था जो कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया. तो जो टाइपोलॉजीज आर वेरी सिंपल एंड हैव लिमिटेड यूज़ इन प्रेडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो सो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर मोर लाइक स्टीरियोटाइप्स विच पीपल होल्ड, कि भाई अगर इस तरह का है तो ऐसा ही होगा. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि कोई पर्सन अगर मेसोमॉर्फिक को अगर बिलोंग करता है तो वो करेजियस ही हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. तो दीज आर स्टीरियोटाइप्स समटाइम. नाउ द नेक्स्ट is given by the Jung. Okay, Carl Jung has proposed another important personality typology in 1910 by grouping people into extroverts and introverts. ये बहुत कॉमन है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में कि ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है. तो एक्सट्रोवर्ट्स जो पीपल होते हैं दे आर sociable, bold, assertive, outgoing, enjoy social activities. On the other hand, introverts are shy, tend to withdraw for social activities, prefer loudness, and हम लोग कह सकते हैं बहुत रिजर्व पर्सनालिटी होते हैं. ठीक है, तो अटेंशन ऑफ इंट्रोवर्ट्स इज फोकस्ड इनवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. सो और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही talkative types होते हैं. So these two categories are often inadequate to fully capture differences in personality. So an extrovert हो सकता है at a times is introvert and an introvert at times is extrovert. ठीक है, होता है ना कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम हमारा बिहेवियर चेंज कर लेते हैं. ओके, सो ये भी बहुत ही हमें क्लियरली नहीं करता है, पर हाँ ठीक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हम लोग कॉमन भी हमारी जनरल लाइफ में भी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ये वर्ड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं. अनदर जो हम लोग कह सकते हैं जो पर्सनैलिटी टाइप जो क्लासिफिकेशन था इज़ गिवन बाय फ्रीडमैन एंड रोजनमैन in 1974.
ओके, सो ये बहुत ही फेमस है और अभी तक जिसे हम कह सकते हैं कि फॉलो करते हैं लोग इसे अभी तक भी, ठीक है। सो टाइप उन्होंने 2 टाइप्स बेसिकली जो बताई थी वो हमें ये बताई थी, टाइप ए एंड टाइप बी। देन फर्दर ही गिवन द टाइप सी एंड टाइप डी क्लासिफिकेशन ऑल्सो। सो पर्सनैलिटी विद टाइप ए सस्पेक्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, characterized by a strong sense of time urgency and are impatient, excessively competitive, hostile, easily agreed. Okay, so हम लोग कह सकते हैं कि they always feel short of time, be in a great hurry. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, हाईली मोटिवेटेड, फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डन्ड विद वर्क, हमेशा बहुत सारा काम है। सच पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स। ओके, सो दे आर ऑफन कॉल्ड एज हरी सीकर, बिकॉज हमेशा वो हरी में रहते हैं, तो दे आर द हरी सीकर एंड आर लाइकली टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज नोन एज अ CHD। ओके, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज और हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमेशा अपने आपको वर्क ओवरलोडेड और होस्टाइल और बहुत सारा कुछ समझते रहते हैं। नाउ द अनदर टाइप इज द पीपल विद टाइप बी। बिहेवियर पैटर्न आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ टाइप ए सिम्टम्स, ठीक है। टाइप ए सिम्टम बिल्कुल नहीं होते हैं, दे आर रिलैक्स्ड, ईजी गोइंग, ओके। और मीन टू से कि हम लोग कह सकते हैं कि डोंट सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम इमरजेंसी, कि हमेशा के हमेशा बहुत बिजी हैं। दे प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन rather than exhibiting superiority over others. So type B persons may be as ambitious as type A and even more successful as well. So few people are purely type A and purely type B. Most people fall elsewhere in between two end points. ओके, सो जो इन सब कुछ के साइड करके एक और टाइपोलॉजी दी गई थी, टाइप सी एंड टाइप डी इज सजेस्टेड। ओके, नाउ टाइप सी। Type C people, cooperative, unassertive, and patient, suppress negative emotions, show compliance of others. So students, this type C is basically suggested by the Morris. Okay, and जो मॉरिस थे, उन्होंने बताया कि जो टाइप सी पर्सनालिटीज़ होती हैं, में इंक्रीज द लेवल ऑफ हार्मफुल स्ट्रेस हार्मोन्स बिकॉज ऑफ सम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक they are cooperative, unassertive, suppress their negative emotions, okay, and show compliance to authority. So that's why they increase the level of harmful stress hormones, weaken the immune system, and tends to encourage slow recovery. So all paving way for cancer. So इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि prone to cancer, ठीक है, क्योंकि उनका इस तरह का कुछ पर्सनालिटी बन जाता है कि धीरे धीरे उनमें इम्यूनिटी उनकी वीक होती चली जाती है। ओके, नाउ द अनदर टाइप इज टाइप D. Now type D personality is depression prone and possesses distressed personality, prone to depression. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हमेशा डिस्ट्रेस्ड पर्सनालिटी होते हैं। सच पर्सनस एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ नेगेटिव इमोशंस एंड टाइटन इट्स एक्सप्रेशन दैट कॉजेज हाई डिस्ट्रेस अमंग दैम। हमेशा बहुत टेंशन है, इस तरह की चीज़ें वो लोग कहते रहते हैं। ओके, तो दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द फ्रीडमैन एंड रोजनमैन in 1974, and the type approaches to personality is no doubt appealing but is too simplistic. बहुत ही सिंपल है, जैसे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो कार्ल जंग ने दिया था वो तो हम बहुत यूज़ भी करते हैं। सो पीपल इन जनरल डोंट फिट प्रॉपरली इनटू वन कैटेगरी। वी कैन नॉट कैटेगराइज कि पर्सन इस कैटेगरी में फिट है, बिल्कुल ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ है। तो दैट्स वाई another category suggested by personality typologist. So इसी वजह से जो दूसरे अप्रोचेस हैं उनका डेवलपमेंट हुआ पर्सनालिटी में, एंड दिस इज द एक्चुअली फर्स्ट जो हम लोग कह सकते हैं थ्योरी अप्रोच थी, जो कि साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि हमने हिप्पोक्रेट्स से स्टार्ट किया वहाँ से, ठीक है ना। तो धीरे धीरे और होते गई, लेकिन ये जो टाइप अप्रोच है बहुत ही सिंपलिस्टिक है। दैट्स वाई अनदर जो अप्रोचेस हैं हम लोग वो भी पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रेट अप्रोच। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस मॉड्यूल।